Hello friends, so I Dr. Vivek Kumar Srivastav welcome you all on my YouTube channel where I upload videos for BSc, MSc, BTech, CSIR, GATE, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो इसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं और इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, चाहे वो IIT जैम का हो या फिर CSIR का हो या फिर गेट का हो, BSc का हो, MSc का हो। तो इन सब की सीरीज़ आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। So I am going to start another complex analysis series on YouTube, and these videos are very useful for BSc, MSc, BTech, CSIR, GATE examination, right? So in this complex series, I will try to finish each lecture within 15 minutes, right? And we will cover all these things very quickly and try to more focus on the problems, right? So now see, in this lecture I will discuss first about the complex variable, then derivative of fz, then analytic function, then necessary and sufficient condition for fz to be analytic, then Cauchy-Riemann equation, and lastly we try to solve the problems. Very quickly we just see each end. So first we discuss about the complex variable. Everyone knows z, that is x plus iota y is the complex variable, where x is the real part and y is the imaginary part. Now there are three forms of this complex number, right? First is the Cartesian form, that is x plus iota y. If the function is in term of xy, it is Cartesian form, where iota everyone knows it is under root minus 1. Second is the polar form, that is you can represent this z in term of r and theta. Put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. You will get the polar form, that is z is equal to r common हो जाएगा, cos theta plus iota sin theta. This is polar form. Another form, that is the exponential form, that is z is equal to r e raised to the power I theta. Everyone knows by De Moivre's theorem, cos theta plus I sin theta, that is e raised to the power I theta. So these are the three forms which are very useful and important. Now we just see what is derivative of fz, because once we discuss about the analytic function, this term is very important. So analytic, before analytic we need to understand what is derivative of fz. तो डेरिवेटिव ऑफ एफजेड तो सभी जानते हैं, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि द फंक्शन इज डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट, राइट, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो क्या मतलब है, एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल जेड, देन इफ द डेरिवेटिव एफ डैश जेड, जिस भी पॉइंट पे आप बात करेंगे, इफ लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड upon del z, means if we just do a small change, that is goes towards zero, right, means very small change, then overall effect exists, right, means f dash z, this is the, everyone knows this is the differential coefficient, provided that the limit exists and is independent of the path along this del z tends to zero. देखिए, जो भी आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, सभी को पता है कि वो डेरिवेटिव की लिमिट क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। कब, अगर मैं कहूँ अगला जो स्टेप है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस, राइट। अगर मैं लेफ्ट और राइट लिमिट की बात करता हूँ तो सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट होने की बात हो रही है। अगर उस पॉइंट पे भी एफ डैश जेड जीरो, अगर उस पॉइंट पे भी इक्वल हो, तो हम इसे बोलेंगे व्हाट, डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, या डिफरेंस बोलते हैं कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। So if this derivative is exist at that point, right, this is called derivative of fz, or the function is differentiable at that point, right. So now we are going to discuss about a very important topic, that is analytic function. तो analytic function देखिए क्या है, if this is basically the complex function fz which is defined in this domain, right, and when we say that this function fz is analytic at a particular point, तो देखो बहुत ही आसान डिफिनीशन है, ए फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इन दिस डोमेन इफ इट इज नॉट ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सब नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। इस जेड नॉट जो है उसके नेबरहुड में भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, राइट, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक, राइट।
सो आई थिंक दिस डिफिनीशन इज क्लियर। तो इसी नाते मैंने आपको इससे पहले डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव की डिफिनीशन बताई। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द डोमेन, देन व्हाट इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। देखो अब अभी हमने जिसकी बात किया वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात किया, राइट। एनालिटिक एट ए पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट एनालिटिक इन द डोमेन then it must be analytic at every point inside the domain, right? Now next is the point at which the function is not differentiable is called singular point। देखिए आगे चल के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ सिंगुलरिटी पढ़ाई जाएगी आपको, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिंगुलरिटी क्या है, कितने टाइप की सिंगुलरिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर किसी भी कोर्स में भी अगर है सिंगुलरिटी या एनालिटिक फंक्शन तो आना ही आना है क्वेश्चन, राइट। सो द पॉइंट एट विच द फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, जहां पे एनालिटिक ना हो, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो, आर फेल्स टू बी एनालिटिक, राइट। एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक भी बोला जाता है, रेगुलर भी बोलते हैं और मोनोजेनिक भी बोलते हैं, राइट। तो आपको एनालिटिक अगर कहीं बात की जा रही है तो आप होलोमॉर्फिक भी, रेगुलर भी, एनालिटिक भी, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है, राइट। चलिए नाउ वी सी व्हाट इज द बेसिकली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, या इसी में हम देखेंगे कासी रीमान इक्वेशन। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये जो आपके 4 पार्शियल डेरिवेटिव हैं, जैसे इसका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा एफ डैश, तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है या फिर वाई के रिस्पेक्ट में हो सकता है, राइट। तो इसके कितने डेरिवेटिव हो जाएंगे, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, राइट। 2 डेरिवेटिव हो गए, और इसी तरीके से आपका v का भी x और y के रिस्पेक्ट में, तो टोटल 4 डेरिवेटिव हो गए। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट इन द गिवन रीजन आर, ये आपका क्या होना चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, एंड दीज 4 पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी एग्जिस्ट। ये तो नेचुरल सी बात है, चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन अभी आपने कासी रीमान इक्वेशन देखा, इसके अलावा आपके जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, राइट। सो द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी to be analytic at all the point in the given region R is the first is what, these 2 equation, that is the Cauchy-Riemann equation, del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x, right. And the second condition is all these 4 partial derivative must be continuous, right. So this is the necessary and sufficient condition for being the function analytic. Now these are very important point that are sometimes also asked in exam, right. So if a function is analytic in the domain D, then u v satisfy Cauchy-Riemann equation at all the point in the given domain। जो भी आपका गिवन डोमेन है, अगर मैं कह रहा हूं कि वो फंक्शन एनालिटिक है तो भले ही वो नेसेसरी कंडीशन है, बट उसके सारे पॉइंट पे Cauchy-Riemann इक्वेशन एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। तो अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है तो कि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक प्रूव करना, तो उसका आप Cauchy-Riemann इक्वेशन पहले आप सेटिस्फाई करके देखिए, राइट। सेकंड इज सी आर कंडीशन, मीन्स Cauchy-Riemann इक्वेशन बेसिकली कंडीशन आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक, सफिशिएंट नहीं है, राइट। सफिशिएंट के लिए इस Cauchy-Riemann इक्वेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, 4 पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, राइट। सो Cauchy-Riemann इक्वेशन what our condition are sufficient if what the 4 partial derivative are continuous, right. Next now see the problem। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फंक्शन e रेज टू द पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y इज एनालिटिक आर नॉट, राइट। फर्स्ट वी सी। सो फॉर एनालिटिक क्या मैंने आपको बताया कि वो पहले आपको Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी u और v पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करिए। तो देखिए यहाँ से e raised to the power x cos y plus iota sin y, you can break into u plus iota v, u is equal to e raised to the power x cos y, right. In the similar way imaginary part v, that is e raised to the power x sin y, right. u and v once you compare, अब आप निकालिए यहाँ पे del u by del x, del u by del y,
डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई। सो डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, एक्स का यू का देखिए क्या फंक्शन है, ई पे पावर एक्स कॉस वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरीके से डेल वी बाई डेल वाई निकालिए, डेल वी बाई डेल वाई इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, ई पे पावर एक्स साइन का कॉस वाई। इन द सिमिलर वे डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए cos y है, इसका माइनस साइन y हो जाएगा, e पे पावर x माइनस साइन y, राइट। और लास्टली आपका डेल v बाई डेल x, ये आपका v का फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, e पे पावर x का e पे पावर x साइन y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, राइट। सो नाउ सी डेल u बाई डेल x की वैल्यू क्या है, e पे पावर x cos y, और देखिए डेल v बाई डेल वाई के बराबर है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। सो दिस सेटिस्फाई द Cauchy-Riemann इक्वेशन and now we have to check the four partial derivative are continuous or not. So it is very clear these four partial derivative minus e पे power x sin y or e पे power x sin y या e पे power x cos y or e पे power cos y, all these are continuous and hence we can say that this function is एनालिटिक, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम जस्ट सी, आपको शो करना है कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक आर नॉट, वी हैव टू शो वेदर दिस फंक्शन, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जेड की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये है, और एट जीरो एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो आपको शो करना है एनालिटिक है या नहीं। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट वी जस्ट ब्रेक दिस फंक्शन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 4 दैट इज यू। अगर इस फंक्शन एफ जेड को क्या सपोज कर दें, u प्लस आयोटा v, जो कि आपके पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा। सो इसका रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से इस आयोटा वाले टर्म में जब एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आपका u और v पता चल गया। अब u और v पता चल गया तो Cauchy-Riemann इक्वेशन निकालिए, 4 पार्शियल डेरिवेटिव और 0 0 पे हमें निकालना है, राइट, एट 0 0। सो डेल यू बाई डेल एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव का आपका कंडीशन होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, किस पॉइंट पे, 0 0 पे। सो यू एक्स कामा जीरो माइनस यू एट 0 0 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, यू एक्स, जीरो की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि आपकी वाई की वैल्यू जीरो है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस यू 0 0। तो पहले से क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, लेकिन आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट, अपॉन एक्स, राइट, अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट वाई टेंस टू जीरो यू 0 कामा वाई, राइट, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस एट विच पॉइंट 0 0 अपॉन वाई, राइट। दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर u की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, दिस विल बी 0, और u 0 0 की वैल्यू पहले से 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, दिस फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन 0। सो नाउ इसी तरीके से डेल v बाई डेल एक्स, अब v वाले फंक्शन का आप निकालिए पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 0 v x कामा 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। देखो जब x रहेगा तो x प्लस h हो जाता है, राइट। अब जो भी आपका कंडीशन है, अगर 0 0 पूछा है तो 0 0 पे अगर कोई पॉइंट होता तो उस पॉइंट को हम रखते हैं, राइट। सो लिमिट x टेंस टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x, दैट इज बेसिकली लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस 0। देखिए यहाँ पे फिर आपका v फंक्शन अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x कामा y तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, राइट। इसी तरीके से डेल v बाई डेल वाई भी हो जाएगा, चूंकि आपका v 0 कामा वाई माइनस v 0 0 अपॉन वाई, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा। सो दीज 4 पार्शियल डेरिवेटिव आर 0। नाउ वी कैन सी डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई। इन द सिमिलर वे डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल v अपॉन डेल वाई। देखिए यहाँ पे डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, सारे ही वैल्यू तो 0 है, सब बराबर हो गए, राइट। सो Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। नाउ वी हैव टू चेक वेदर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट आर नॉट। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एफ डैश किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे। सो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, राइट। अब देखो यहाँ पे आप जेड एफ जेड की वैल्यू आपके क्वेश्चन में पहले से दिया था क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब जेड को एक्स के टर्म में लिखेंगे, सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो एक्स जब जेड टेंस टू जीरो है तो एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो भी होगा, माइनस एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो पहले से क्वेश्चन में दिया है, इंटू वन अपान जेड। देखिए जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, तो देखिए एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई विल बी कैंसिल्ड, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। अब देखो मैंने आपको जब अभी आपको डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन पढ़ाई तो क्या बताया कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, और एग्जिस्टेंस के साथ उसकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो देखो जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हर पाथ पे उसका डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन है किसी फंक्शन के, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं इसका मतलब वो फंक्शन को लेफ्ट राइट कहीं भी जाए वो किसी भी पाथ पे लिमिट मस्ट बी यूनिक, वो जो कि आपको ऊपर लिखवाया अभी, राइट। सो जेड टेंस टू जीरो अलोंग द वाई एक्सिस, 2-3 पाथ पे चेक करो क्या हर पाथ पे लिमिट यूनिक आ रही है, अगर आ रही तो ठीक है, नहीं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स एक्सिस पे देखते हैं, अगर मैं y टेंस टू जीरो पुट करता हूं तो देखिए पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी एफ डैश जीरो एट जीरो आ जा रहा है, राइट। दूसरा पाथ चेक करते हैं, अलोंग जेड टेंस टू जीरो अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा देखो ये किस तरीके से लिया जाता है अलग अलग पाथ। पहले देखो फंक्शन अगर आप इस तरीके से पुट करेंगे x को y के टर्म में, सो दैट ऑल द टर्म विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल गेट सम कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो देखो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 है, इसका 2 टाइम्स है, मतलब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो y पे पावर 4 आ जाएगा, राइट। और न्यूमरेटर में भी यही होगा, सो हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जैसे ही आप पुट करेंगे, या x इक्वल टू एम वाई स्क्वायर भी आप पुट कर सकते हैं, राइट। सो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स जीरो, देखिए x की वैल्यू आपने क्या पुट कर दिया, वाई स्क्वायर, तो बेसिकली यहाँ पे, या आप ये भी बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट कर दिया, दोनों बातें की। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y पे पावर 4 है जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू हमने x सपोज किया है, राइट। सो नाउ सी एक्स स्क्वायर, और देखिए डिनोमिनेटर संज्ञा हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए एक पाथ पे अपनी वैल्यू 0 दे रही है और दूसरे पाथ पे 1/2 दे रही है। मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया कि द फंक्शन मस्ट बी व्हाट, जो भी आप फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर रहे हैं उसका लेफ्ट और राइट लिमिट सेम होना चाहिए किसी भी पाथ के लिए, राइट। और डेरिवेटिव है, सो which shows that f dash जीरो does not exist since limit is not unique। मैंने आपको बताया हर पाथ पे लिमिट क्या होनी चाहिए, यूनिक। along two different path limit are what different, hence we can say that Cauchy-Riemann equation तो satisfy कर रहा है, this Cauchy-Riemann equation is satisfied even this function is not analytic, why, because the 4 partial derivative are not continuous, so fz is not analytic at origin, all those Cauchy-Riemann equation are satisfied। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको असाइनमेंट देता है, आपको शो करना सो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन। नॉट रेगुलर का मतलब एनालिटिक नहीं है एट ओरिजिन, राइट। तो इस वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से इसे जैसे ऊपर अभी प्रॉब्लम सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करिए, इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, राइट। तो देखिए इसका मैंने वैसे सोल्यूशन दे दिया है, ऑल दो Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाई। इस केस में भी Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, फिर भी ये एनालिटिक नहीं है, राइट। वाई, क्योंकि वो पार्शियल डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूअस नहीं है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, और पॉज करने के बाद जब आप देखेंगे कि ये मैंने इसको ब्रेक भी कर दिया, fz इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी, चूंकि इसमें इमेजिनरी आई का कोई टर्म है नहीं तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। और यहाँ पे देखिए 4 पार्शियल डेरिवेटिव ले आया, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया गया था, सारे 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस भी है। और यहाँ से फिर वैसे ही 2 पाथ अलग अलग लेके दिखाया है, तो पहले आप खुद अपने मन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, राइट, तभी अच्छा रहेगा। इट इज़ क्लियर। तो देखिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ के आगे देखेंगे कि इसके आगे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।